हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एंड बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए, बहुत दिन हो गया था एक्चुअली। लगातार मैं ये बुक को लगातार पढ़े ही जा रहा था, क्योंकि इसका जो जो भी पेज था मैंने उसको डीपली पढ़ा, लेकिन एक दो दिन उसको थोड़ा समराइज़ करने में भी हुआ कि मैं इसको कैसे, मतलब कुछ भी तो नहीं बता सकता मैंने, जैसे पहले वीडियो में बताया था। और एंड इवन सच में, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने इस बुक को जब पढ़ा ना, मतलब क्या बताऊँ, यू नो गाइज, सोसाइटी हैज़ अ हैबिट ऑफ गिविंग टैक्स। मेरा मतलब है, व्हेन यू आइसोलेट योर सेल्फ, when you cut off from distractions and focus purely on your grind, people often say इसमें ईगो आ गया है। आपने सुना होगा इस चीज़ को हमेशा ही, कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने किसी वर्क में लगे हुए हो, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपकी एक अपनी आइडेंटिटी हो, तो आप डायरेक्टली सुनो कि लोग कहेंगे कि इसमें ईगो आ गया है। और आप लोग सुने होंगे, आई थिंक सो, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल इसलिए नहीं होता क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है आप उसको जज कर रहे हो, सिर्फ अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जज कर रहे हो। अगर आपका वर्क, रिसेंटली आई वॉज रीडिंग दिस डीपली पावरफुल टेक्स्ट बाय भगत सिंह, वाई एम एन एथिस्ट, विच इज़ very closer to my heart now, in nowadays. And there is an incident where people accuse him of being vain and arrogant because he refused to pray, even when he was facing the ultimate end on the gallows. But he clarifies um, something that completely shifted my perspective on our daily struggle. It was not ego. It was the refuse to lie to himself. Are you getting? Get it my point or not? And I think we have to be real. I mean, let's be real. When the pressure is mounting, when you are exhausted, when the syllabus feel never ending, or when you are stuck on complex math calculation and in a life calculation, and the time is just ticking away, it is very comforting to believing in a miracle. It is comforting to pray and hope that somehow thing will just fall into place, because I think everything which is happening with you have something reason, and that is Bhagat Singh actually acknowledged this. He says that belief make it easier to go through hardships. They give you support system, but what happen when you step that comfort? And but what happened? I ask you repeatedly, but what happened when you strip that comfort away? What happened when you realize that hoping for an easy paper or wishing that topic you skipped does not show up? It's just a way of escaping reality. Are you getting my point or not? Energy rises always. I think energy is not always at same. The graph of energy is always like ups and downs, always. And you have no alternative but to depend upon yourself. Think about it. No one is coming to clear the cutoff for you. No one is going to sit and analyze your mistake in the 100th test or even 100 something in your life.
Are you getting my point? When you are completely drained and maybe after a long exhausting a run, and you just want to sleep instead of opening the one last book or PDF, that is a moment of truth. If you rely on luck, you become lazy. But if you rely on reason, you become dangerous. Because a realist does not wait for luck. A realist, जो realist होते हैं, वो अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं, वो लक पे नहीं निर्भर करते हैं अपने आप को। निर्भरता जो होता है वो लक पे नहीं बनाते हैं। उनका कहना था, इस बुक में उन लोगों ने क्लियरली लिखा है कि आप लक पे नहीं, आप अपने मेहनत पे विश्वास करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए रियलिस्ट जो होता है एनालाइज एवरीथिंग, एक एक छोटे छोटे चीज़ को एनालाइज करता है कि जो मैं इस काम को जो करने जा रहा हूँ तो इसमें मेरे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं आएंगे, ये सब चीज़ सोचना पड़ता है। दे लुक एट देयर वीकनेस, दे फाइंड द शॉर्टकट, दे बिल्ड देयर स्पीड एंड दे फेस द हार्श फैक्ट ऑफ देयर सिचुएशन। आपने एक बात बोला और उस पर अडिग रह गया आप। ब्लाइंड बिलीफ मेक यू पैसिव एक्सपेक्टेटर इन योर ओन लाइफ, बट रीज़न डिमांड एक्शन। कोई भी कारण है उसमें एक्शन की ज़रूरत होती है। इट डिमांड दैट यू वेक अप एवरी अ सिंगल डे एंड जस्ट वर्क ऑन इट। यू हैव टू वर्क ऑन इट and face the grind, no matter how repetitive or painful it is. If you think about pain, how you will grow? If you think about something what will happen in future and you get stuck on that point कि यार अब क्या करूँ मैं, अब मेरे से तो ये होगा नहीं, अब विश्वास नहीं हो रहा, फिर आप भगवान को बोल रहे यार भगवान, कौन किसके बारे में बात कर रहे हो? एंड दिस इज द रीज़न 1 से जो 15 दिन का जो टाइम पीरियड था, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, 1 पेज टू 15 पेज का जो एक समराइज स्टोरी था जो उन्होंने एक जेल में रखकर बिताया। एप्लीकेशन इन द सेंस कि वो एक बुक लिखी है ना, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। एंड बिकॉज एट दैट पॉइंट उनके लिए बहुत यार देखो, वो भी इंसान ही थे। मानना किसी चीज़ को, नहीं मानना वो अलग चीज़ है। हर इंसान की अलग अलग पर्सपेक्टिव होती हैं, बट वो इंसान में अडिग फार्मनेस जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था। एंड इवन उस इंसान को ये समझ आ गया था कि आप जो करेंगे वही होगा, आप जो करेंगे, आपका जो पहला कदम होगा वही आपका होगा। एंड मैं सच बता रहा हूँ, एंड दिस ब्रिंग मी to the most profound line in the whole book. People always ask, what if I put in all this effort and still fail? Are you getting my point? And what if the circumstances just don't favor me? And पता है भगत सिंह ने इसको कैसे रिप्लाई दिया? In a very simple and brutal truth, it's a man's duty. It's a man's duty to try. आपका काम है कोशिश करना। इट्स मैन ड्यूटी टू ट्राई एंड मेक एफर्ट्स। सक्सेस डिपेंड ऑन चांस एंड सर्कमस्टांसेस। आवर ड्यूटी इज द एफर्ट, दैट इज whether the final result in our favor or not depend on 100 variables we cannot control, but the sweat, but the sacrifices and the active retrievals, the late nights,
एंड जो भगत सिंह जी ने जो अपना डेज स्पेंड करा था जेल में, दैट इज इंटायरली वर्ड नहीं है यार उस चीज़ के लिए। इसीलिए अगर आप भी अपने काम को अपना समझते हैं, भगवान पे नहीं कि भगवान देखा जाएगा, ये क्या देखा जाएगा, क्या होगा कल, आपको भरोसा नहीं है खुद पे। एंड इफ दिस इज हिट यू एज हार्ड it is hit me, don't just close this video and move on. Go put in the work. Let me know in the comment if you are ready to take a full responsibility for your grind today. Subscribe if you want a more unfiltered truths, and I will see you in the next one, and I will try to make more improved video for you, because यार मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि यार लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए मरा जा रहा हूँ। यार आप सुनो, अच्छा लगेगा, आप उसको लाइक करो मत करो यार, आप सुनो, कम से कम चेंज तो करो यार अपनी लाइफ को। अगर मेरे से अगर आप तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँच जाएगी तो ये ज़िंदगी कुर्बान है यार। हमेशा कोशिश रहेगी कि बहुत कुछ पहुँचा दे। ठीक है, and always support the truth systems. Just believe on yourself. Okay, Jai Hind.